الفاتحہ۔ چالو ہے کہ نہیں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمتقین، والنار للعاصین۔ الصلاۃ والسلام علی رسالۃ المحمدیہ، والشجاعۃ العربیہ، والعصمۃ الفاطمیہ، والصلح الحسنیہ، والصبر الحسینیہ، والعبادۃ السجادیہ، والمعاصی الباقریہ، والصدق الجعفریہ، والکظم الموسویہ، والرضا الرضویہ، والجود التقویہ، والنقاوۃ النقویہ، والحیبۃ العسکریہ، والغیبۃ القائمیہ، صلی اللہ محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعن الله على أعداء من فضل يوم على يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد. جس آیت کا میں نے شرح حاصل کیا ہے وہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی 174ویں آیت ہے، جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا کی طرف سے تمہاری جانب ایک برہان آئی ہے، ایک دلیل آئی ہے، اور خدا نے فرمایا ہے کہ خدا نے تمہاری جانب نور مبین کو بھی بھیجا۔ آج کی اس مجلس میں جو افکار آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نے ہدایت انسانیت کے لیے، ہدایت بشریت کے لیے، ہدایت آدمیت کے لیے جس کسی کو بھی ہادی بنا کر بھیجا اسے معصوم بنایا، کیونکہ عنوان گفتگو ہے معصوم اور معجزہ، کہ اللہ کی سنت ہے یا اس کی یہ سیرت ہے کہ اس نے جس کسی کو بھی ہادی بنا کر کائنات میں بھیجا اسے معصوم بنایا۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے خدا نے ہادی بنائے، ان ہادیوں کو معصوم بنایا اور معصوم کو مسجود ملائکہ بنایا، ان معصومین کا انکار کرنے والے کو ملعون بنایا، مردود بنایا، ابلیس بنایا۔ خدا نے اس کی ساری عبادتیں رد کر دی، اس کے سارے سجدے ضائع کر دیے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے معصوم و ہادی جن کو خدا نے زمین پر بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو خدا نے خلق کیا۔ خلقت آدم کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ خدا نے کس طرح کن چیزوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ پانی، مٹی اور ایسی ہی چیزیں، اجزاء تخلیق حضرت آدم قرآن مجید میں موجود ہے کہ خدا نے جب حضرت آدم کو بنا لیا تو خدا قرآن مجید کی سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے، کس سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے؟ جب حضرت آدم کو خدا نے بنا لیا تو خدا فرشتوں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَقَوْلُ السَّاجِدِينَ، اے فرشتوں جب میں اس میں اپنی روح کو پھونک دوں، اسے سوار دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ کیا کہہ رہا ہے خدا کہ جب میں اس کو سوار دوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اب جب سب نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو خدا قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں ارشاد فرماتا ہے قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا تھا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ توجہ، کون سے دونوں ہاتھ؟ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا تھا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب جس کے لیے قرآن ہی کافی ہے وہ اس آیت کو کون سے نمبر پہ رکھیں گے؟
कौन से नंबर पे रखेंगे? अगर अली मौला ने इस आयत की तफसीर न बताई होती, इस आयत का मतलब न बताया होता, तो क़यामत तक दुनिया ये सोचती रह जाती इस आयत का मतलब क्या है, इस आयत की तफसीर क्या है। एक मरतबा खतीब मिंबर सुलूनी मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की मिंबर पर जलवा अफरोज थे। एक मरतबा एक शख्स आता है और कहता है, या अली, खुदा इस आयत में क्या कहना चाहता है? काला या इब्लीस माने का तजुदालमा खलक रियदी, ए इब्लीस, तुझे किसने मना किया था उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? तो ऐ अली, खुदा तो न हाथ रखता है, न पैर रखता है, न जिस्म रखता है, न जिस्मानियत रखता है। खुदा किन दोनों हाथों की तरफ इशारा करके फरमा रहा है, ए इब्लीस, तुझे किसने मना किया था उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? एक मरतबा अबू तालिब के बेटे अली इब्न अबी तालिब अपने सीने की जानिब इशारा करते हैं और कहते हैं, ए खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे ये सआदत अता की कि मेरे इन दोनों हाथों से आदम की मिट्टी का खमीर गूंदा गया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हम किन के मानने वाले हैं? कौन सी हस्तियाँ हैं वो कि रसूल खुदा अली फरमाते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ने मुझे इस सआदत अता की कि मेरे इन दोनों हाथों से आदम की मिट्टी का खमीर गूंदा गया। जब फर्स्ट दिन सजदा कर लिया और इब्लीस ने खुदा आदम को सजदा नहीं किया, तो एक मरतबा खुदा सूरह साद की उसी आयत में आगे फरमाता है, अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, तूने तकब्बुर किया, क्या तू भी उन बहुत बड़े लोगों में से हो गया? अब मुझे बताएं, अभी तो लोग खल्क ही नहीं हुए थे कि खुदा किन की तरफ इशारा करके कह रहा है, क्या तू भी उन बहुत बड़े लोगों में से हो गया? इसका मतलब ये है कि खलकत आदम से पहले कुछ ऐसे लोग मौजूद थे, कुछ ऐसे बहुत बड़े लोग मौजूद थे कि जिनके ऊपर वाजिब न था कि आदम का सजदा करें। खुदा क्या कह रहा है यहाँ पर? आलीन, अली की जगह खुदा आलीन को इस्तेमाल करता है। ऐन अलिफ लाम ये नून, आलीन, अली के मानी बुलंद, औला, मौला, बुलंद, बरतर। एक मरतबा अली कौन सी बुलंदी को कहते हैं? अली उस बुलंदी को कहते हैं जिसके सामने कायनात की सारी बुलंदियां सजदा रेज हो जाएं। अली उस बुलंदी को कहते हैं जिसके सामने कायनात की सारी बुलंदियां नकाब पहनने पर मजबूर हो जाएं। किसी ने हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है, मौला आप कब पैदा हुए? क्या पूछता है? या रसूल अल्लाह आप कब पैदा हुए? रसूल कहते हैं, कब का लफ्ज़ हमारे बाद पैदा हुआ। पूछने वाला कहता है, मौला आप किस वक्त पैदा हुए? रसूल कहते हैं, वक्त हमारे बाद की तख्लीक है। कहा, मौला क्या आप ज़मीन पे पैदा हुए? कहते हैं, ज़मीन हमारे सामने बिछाई गई। कहता है, क्या आप आसमान पे पैदा हुए? रसूल कहते हैं, आसमान का चांदना हमारे सामने ताना गया। पूछने वाला पूछता है, मौला जब आप इन सबसे पहले पैदा हुए तो मौला क्या आप ज़िंदगी से भी पहले पैदा हुए? मौला क्या आप ज़िंदगी से भी पहले पैदा हुए? तो रसूल कहते हैं, ज़िंदगी हमारे सामने छिड़की गई। कहा, क्या मौत से भी पहले पैदा हुए? कहा, मौत हमारे सामने खल्क की गई, मौत को मारेंगे भी हम। एक मरतबा पूछने वाला पूछता है, मौला जब आप इन सब चीज़ों से पहले पैदा हुए तो क्या मौला आप आदम से भी पहले पैदा हुए? रसूल कहते हैं, आदम हमारे सामने खल्क किया गया। अब देखिए वही आ गया, क्या खुदा ने क्या फरमाया था? क्या तू भी इन बहुत बड़े लोगों में से हो गया? कौन बड़े लोग थे? यही थे कि रसूल खुदा कह रहे हैं कि आदम हमारे सामने खल्क किया गया, यानी यही वो लोग थे, रसूल यही वो लोग थे कि जो हज़रत आदम की तख्लीक से पहले पैदा हुए। अब पूछने वाला पूछता है, मौला जब आप आदम से भी पहले पैदा हुए, वक्त से भी पहले पैदा हुए, ज़मीन से पहले पैदा हुए, आसमान से पहले पैदा हुए, ज़िंदगी से पहले हुए और मौत से पहले पैदा हुए, तो मौला आप रहते कहाँ थे और करते क्या थे? बराबर में अली मौला बैठे थे। रसूल पूछते हैं, ए अली तुम जवाब दोगे या मैं जवाब दूँ? क्या कहते हैं, ए अली तुम जवाब दोगे या मैं जवाब दूँ? अली मौला कहते हैं, रसूल अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जवाब दूँ। सरकार रसूल खुदा कहते हैं, अली तुम जवाब दो। अली अपनी जगह से खड़े होते हैं, पूछने वाले से कहते हैं, सवाल दोहरा। पूछने वाला पूछता है, मौला जब आप सबसे पहले पैदा हुए तो क्या आप सूरज से भी पहले पैदा हुए? तो नबी ने बताया था ना, अगर सूरज से पहले पैदा ना हुए होते तो सूरज को उंगली के एक इशारे से पलटने का हुनर कहाँ से लाते? पूछने वाले ने पूछा, चांद से भी पहले पैदा हो क्या मौला? आप चांद से भी पहले पैदा हुए? तो पूछने वाले रसूल खुदा ने फरमाया था ना कि अगर चांद से पहले ना पैदा हुए होते तो उंगली के एक इशारे से चांद को दो टुकड़े करने का हुनर कहाँ से लाते? अब मौला अली से पूछता है, वो पूछने वाला पूछता है, मौला जब आप वक्त से
पहले पैदा हुए, जब जिंदगी से पहले पैदा हुए, मौत से पहले पैदा हुए, आसमान से पहले पैदा हुए, जमीन से पहले पैदा हुए, सूरज से पहले पैदा हुए, चांद से पहले पैदा हुए, पहाड़ों से पहले पैदा हुए। मौला जब आप आदम से पहले पैदा हुए, नूह से पहले पैदा हुए, इब्राहिम से पहले पैदा हुए, इस्माइल से पहले पैदा हुए, इसहाक से पहले पैदा हुए, याकूब से पहले पैदा हुए, अय्यूब से पहले पैदा हुए, यूसुफ से पहले पैदा हुए, यूनुस से पहले पैदा हुए, जकरिया से पहले पैदा हुए, जकरिया से पहले पैदा हुए, जुल्करनैन से पहले पैदा हुए, इदरीस से पहले पैदा हुए। तो मौला जब इन सब से पहले पैदा हुए तो रहते कहाँ थे और करते क्या थे? मौला कहते हैं इतना नहीं समझ सकता, जहाँ वो रहता था वहाँ हम रहते थे, जैसा वो करता था वैसे हम करते थे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये है मोहम्मद वाले मोहम्मद के हिलकत का राज, जो दुनिया नहीं समझ सकती, जो दुनिया कभी नहीं समझ सकती। खुदा ने इनके नूर को सबसे पहले पैदा किया, तभी तो रसूल ने कहा अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व अना व अली मिन नूरिन वाहिद। सबसे पहले खुदा ने हमारे नूर को खल्क किया और अली और मैं एक ही नूर से हैं। जब रसूल ने कह दिया सबसे पहले, फिर आसमान से पहले, चांद से पहले, सितारों से पहले, सैयारों से पहले, दरख्त से पहले, पहाड़ों से पहले खुदा ने सबसे पहले इनके नूर को खल्क किया, तो मालूम ये होता है कि सारी दुनिया जब अदम के अंधेरे में डूबी हुई थी तो नूर पंजतन ज़ेवर वजूद से आरास्ता हुआ, नूर पंजतन ज़ेवर वजूद से आरास्ता हुआ। यही तो फ़र्क है इनमें और तमाम अनबिया में। मासूमीन वो हैं जिनके सामने कायनात पूरी खल्क की गई। तभी तो अज्जाए तरकीबी का, कायनात के अज्जाए तरकीबी का पहला खुतबा, तारीख़ आदमियत का सबसे पहला खुतबा मेरे अली मौला ने दिया। अली मौला ने बताया कि कैसे दुनिया कायनात कैसे कैसे बनी, सूरज की अज्जाए तख्लीकी क्या क्या है, चांद कैसे कैसे बना, सूरज पहाड़ कैसे बने, समुद्र कैसे बना, कई सैयारे कितने हैं, कहकशाओं के अंदर कितने सैयारे हैं, कितने करोड़ सैयारे हैं, ये सब अली मौला ने बताया। तभी तो पूछने वाला एक आया और कहता है या अली ये बताएं कि ज़मीन से सूरज का फासला कितना है। अली मौला क्या जवाब देते हैं, अगर एक घोड़ा 500 मील फी घंटा की रफ्तार से चले और 500 बरस तक चलता रहे तो सूरज तक पहुंच जाएगा। आज की साइंस ने जब ये हिसाब लगाया तो बिल्कुल वही फासला निकला, इतना सा भी कमी नहीं था, इतना सा भी ज़्यादती नहीं थी। क्यों? बता वही सकता है जिसके सामने पूरी कायनात खल्क की गई हो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो अली के नाम पे लोग नारा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ये नाम ही ऐसा है कि जिसके सुनते ही दिल की धड़कन तेज होने लगती है, खून जोश मारने लगता है। खुदा ने इन्हें सारी दुनिया पर तसर्रुफ अता किया है। इसकी एक दलील ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और कहता है या रसूल अल्लाह, मैं कलमा तो आपका पढ़ता हूँ, लेकिन जब मेरे सामने नाम अली लिया जाता है मेरा खून जोश मारने लगता है, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो रसूल खुदा ने उसको करीब बुलाया, उसके पेशानी को बोसा दिया, उसके कलेजे से लगा लिया और कहते हैं ए शख्स, जब तेरा नाम अली पे खून जोश मारने लगे, तेरा दिल के धड़कन तेज हो जाए तो अपनी माँ के कदमों को चूम लिया कर। ये तो वही हस्तियाँ हैं जिन्हें खुदा ने सारी कायनात को तसर्रुफ अता किया है। इसकी दूसरी दलील ये है कि जब एक रोज़ अली मौला और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बड़ा मशहूर ज़माना वाक़या है कि बैठे थे, रसूल ने अपना सर अली के जानू पे रख दिया। रसूल को नींद लग गई, अली मौला जागते रहे। अली मौला की नमाज का वक्त जा रहा था, सूरज गुरूब हो रहा था, अली ने गुरूब होने दिया। रिसालत को कज़ा नहीं किया। जब रसूल की आँख खुली, कहते हैं ए अली, तुम्हारी नमाज कज़ा हो गई। अली फरमाते हैं ए रसूल, बात तो तब है कि जब तारीख़ रिसालत, एहतराम रिसालत भी रह जाए और नमाज भी कज़ा ना हो। और कल को कोई तारीख का मौरख़ भी ना लिखे कि अली की कोई नमाज कज़ा हुई। क्यों? क्योंकि अली हर उभरते हुए सूरज से कहते हैं ए सूरज, तू गवाह रहना, तूने कभी अली को सोता हुआ नहीं देखा। अब रसूल खुदा क्या कहते हैं? रसूल खुदा कहते हैं ए अली, अब करना क्या है? सारी दुनिया का मरकज़ है सूरज। आज सूरज को अपनी एक उंगली के इशारे से उठा लो। एक मरतबा दुनिया वालों ने देखा अली मौला का इशारा करना था। रसूल क्या फरमाते हैं? कायनात का मरकज़ है सूरज। सूरज को आज अपनी एक उंगली से उठा लो। रोज़ वो निकालता है, रोज़ वो डुबाता है, रोज़ वो गुरूब करता है। आज ये अली तुम
तुम्हारे सामने ही बना है, तुम्हें पता है इसे कैसे डूबना है, कैसे निकलना है, कैसे डूबना है, कैसे निकलना है। अब दुनिया वालों ने देखा अली मौला का इशारा करना है, सूरज का निकलना है, अली मौला का इशारा करना है, सूरज का निकलना है, अली मौला का इशारा करना है, सूरज का निकलना है। तवज्जो, जब अली मौला का सूरज निकल गया, जब सूरज निकल गया, अली फौरन सजदा शुक्र में चले गए और बता दिया हम अब्द हैं, माबूद वो है, हम अल्लाह के मजहर हैं। मजहर को हमें देखकर ये अंदाजा लगाओ, जब अल्लाह के मजहर ऐसे हो सकते हैं तो उसका खुदा कैसा होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अलैहि मोहम्मद। यहाँ पे शायर ने क्या खूब कहा है, शायर ने क्या खूब कहा है। साहिब फिक्र नज़र हक का वली कहते हैं, साहिब हक का वज़र, साहिब हक को नज़र हक का वली कहते हैं, काशिफो कंजो हबीबे अजली कहते हैं। और जिसे डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब अली मौला बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, ताकि दुनिया वाले समझ सकें हम माबूद नहीं हैं, हम अब्द हैं। हमें देखकर ये अंदाज़ा लगाओ, हमें देखकर अंदाज़ा लगाओ कि हम अल्लाह के मजहर हैं। अल्लाह के मजहर ऐसे हो सकते हैं तो उसका खुदा कैसा होगा। तो अली सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अली मौला बता रहे हैं क्यों किया, क्यों अली मौला ने ऐसा किया, क्यों ऐसा इल्म आया अली मौला के पास, क्योंकि उनका इल्म कायनात से पहले का इल्म है और हज़रत आदम का इल्म कायनात के बाद का इल्म है। क्यों? क्योंकि जब खुदा ने हज़रत आदम को खल्क़ किया तो कायनात बन चुकी थी, सूरज बन चुका था, चाँद बन चुका था, ज़मीन बन चुकी थी, आसमान बन चुका था, आग बन चुकी थी, मिट्टी बन चुकी थी, पानी बन चुका था। इन्हीं चीज़ों से तो खुदा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया। खुदा इनके इल्म में और हज़रत आदम के और इनके इल्म में और सारे अंबिया के इल्म में फ़र्क रखे, इनके इल्म में हज़रत आदम के इल्म में फ़र्क रखे, इनके इल्म में और उनके इल्म में फ़र्क है, इनकी इस्मत में उनकी इस्मत में फ़र्क है। अब हम हज़रत आदम के इल्म को भी तस्लीम करते हैं, उनकी इस्मत को भी तस्लीम करते हैं, क्योंकि हज़रत आदम भी आलिम है, उन्होंने फ़रिश्तों को पढ़ाया है। और जब फ़रिश्तों को पढ़ाने वाला अगर आलिम नहीं होगा तो और क्या होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इनके इल्म और उनके इल्म के अंदर फ़र्क देखिए कि जब नूरे पंजतन जब ये हज़रत आदम में चमका तो खुदा ने कहा ए आदम इन फरिश्तों को इनका नाम बताओ। एक मरतबा नाम बताना शुरू करते हैं, कहते हैं अंता महमूद व हाज़ा मोहम्मद, अंतल आला व हाज़ा अली, अंतल फातिर व हाज़ही फातिमती, अंतल हसन मोहसिन व हाज़ल हसन, अंतल कदीमुल एहसान व हाज़ल हुसैन। क्या कह रहे हैं हज़रत आदम? ए खुदा तू मोहसिन है, ये हसन, तू महमूद है, ये मोहम्मद, तू आला है, ये अली, तू मोहसिन है, ये हसन, तू फातिर है, ये फातिमा, तू कदीमुल एहसान है और ये हुसैन है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अलैहि मोहम्मद। हम हज़रत आदम के इल्म को भी तस्लीम करते हैं। आदम आलिम हैं, आलिम ज़रूर है लेकिन अली मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरह नहीं है। आलिम ज़रूर है लेकिन अली मुर्तज़ा की तरह नहीं है। आलिम ज़रूर है लेकिन हसन मुस्तफ़ा की तरह नहीं है। आलिम ज़रूर है लेकिन हुसैन मौला की तरह नहीं है। खुदा दुनिया इनके इल्म में और उनके इल्म में फ़र्क रखे, इनकी इस्मत में और इनकी इस्मत में फ़र्क रखे। जब हज़रत आदम जन्नत से चलने लगे, अब इनकी इस्मत में और उनकी इस्मत में फ़र्क देखिए। जब हज़रत आदम जन्नत से चलने लगे तो खुदा कहता है ए आदम कहाँ जा रहे हो? कहा ज़मीन पे जा रहा हूँ। खुदा कहता है ए आदम ये लिबास कौन सा पहना है? हज़रत आदम कहते हैं खुदा ये जन्नत का लिबास है। खुदा कहता है ए आदम जब ये जन्नत का लिबास है तो जन्नत में इसे छोड़ दो। हज़रत आदम ने इसे जन्नत में छोड़ दिया और अपने जिस्म को पत्तों से ढककर ज़मीन पे उतरे। ये है इनकी इस्मत। अब उनकी इस्मत सुनिए, अब जब उनकी इस्मत सुनिए तो जब चाहे तब अपने घर पे जन्नत का कपड़ा मंगा सकते हैं और रिज़वान जन्नत आके कहे अना खयातुल हसनैन, अब मैं हसनैन का दर्जी हूँ। अब इनकी इस्मत ये है। यहाँ पे शायर ने क्या खूब कहा है कि किबरिया कहने लगा कि पूरी जन्नत भेज दूँ, किबरिया कहने लगा कि पूरी जन्नत भेज दूँ, आसमां से चांद तारों की जमात भेज दूँ। किबरिया कहने लगा कि पूरी जन्नत भेज दूँ, आसमां से चांद तारों की जमात भेज दूँ। सिर्फ कपड़े मांगे थे इसलिए कपड़े गए, फातिमा ज़हरा कहे तो पूरी जन्नत भेज
صل علی کتنی عظیم ہستیاں ہیں وہ. ہم کن کے ماننے والے ہیں کہ خدا نے حضرت آدم کے سامنے صرف فرشتوں کو سجدہ کرایا. خدا نے حضرت آدم کے سامنے صرف فرشتوں کو سجدہ کرایا، لیکن محمد کے سامنے سارے انبیاء کو سجدہ کرایا. 1,24,000 انبیاء کی ارواحوں کو سجدہ کرایا. فرماتا خدا قرآن مجید کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 میں خدا فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا. اے نبی، ان نبیوں سے پوچھیں کہ میں نے انہیں کس بات پر رسالت عطا کی، کس بات پہ نبوت عطا کی. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، قرآن جمع کیا جانے لگا. لوگ اس آیت پہ جمع کرتے کرتے اس آیت پہ پہنچے، آ کے پھنس گئے. اب ضرورت پڑی باب مدینۃ العلم کی. جب قرآن کا ترجمہ کرتے کرتے اس آیت پہ پہنچے تو مولا کیا فرما رہا ہے، اے نبی، ان نبیوں سے پوچھیں کہ میں نے انہیں کس بات پہ رسالت عطا کی. کوئی کہتا ہے ہمیں تو یہ آیت ہی نہیں لگتی. خدا کہہ رہا ہے اے نبی، ان نبیوں سے پوچھے کہ میں نے انہیں کس بات پہ رسالت عطا کی. ایک مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ جب سے یہ نبی اس کائنات میں آئے، یا تو مکہ میں رہے یا مدینہ میں رہے، یا مکہ میں رہے یا مدینہ میں رہے. ہم مکہ میں بھی ان کے ساتھ تھے، مدینہ میں بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن ہمیں تو نہ آدم نظر آئے، نہ نوح نظر آئے، نہ ابراہیم نظر آئے، نہ اسماعیل نظر آئے، نہ اسحاق نظر آئے، نہ یعقوب نظر آئے، نہ ایوب نظر آئے، نہ یونس نظر آئے، نہ یوسف نظر آئے. سارے انبیاء کہاں تھے کہ خدا فرما رہا ہے اے نبی، ان نبیوں سے پوچھیں کہ میں نے انہیں کس بات پہ رسالت عطا کی. ایک مرتبہ سلمان فارسی نے اس بات کو سن لیا. کون سلمان؟ جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان من اہل البیت، سلمان اہل بیت میں سے ہے. جب سن لیا تو کہتے ہیں اتنی جلدی نہ کرو، پہلے اس کے پاس تو چلو جو باب مدینۃ العلم ہے. لوگ حضرت علیہ السلام کے پاس آئے اور کہتے ہیں یا علی، خدا اس آیت میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا. اے نبی، ان نبیوں سے پوچھیں کہ میں نے انہیں کس بات پہ رسالت عطا کی. ایک مرتبہ علی مولا کہتے ہیں بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، سلمان نے بتایا تھا نا، چلو اس کے پاس چلو جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا، جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، حق قرآن کے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. جہاں جہاں علی مولا جائیں گے اس کے پیچھے، ان کے پیچھے پیچھے حق جائے گا. علی بھی پاک، قرآن بھی پاک، علی بھی نور، قرآن بھی نور، علی بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ، علی بھی طیب، قرآن بھی طیب، علی بھی طاہر، قرآن بھی طاہر. لیکن بس دونوں میں یہ فرق یہ ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور علی سے محبت کرنے کے لیے نسل کا پاک ہونا ضروری ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب علی مولا کہتے ہیں کہ تو تم ٹھیک رہے ہو، کیونکہ یہ آیت نہ مکہ میں نازل ہوئی نہ مدینہ میں نازل ہوئی. کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ مکہ میں نازل ہوئی، نہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور نہ ہی یہ زمین پہ نازل ہوئی. یہ جب رسول کائنات کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ پہنچے، معراج پہ پہنچے، تو سارے انبیاء، ان کی روح، انبیاؤں کی روح تشریف حضرت رسول خدا کو سلامی پیش کرنے کا تشریف پڑے. ساری روحیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی. تب خدا نے یہ آیت نازل کی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا. اے حبیب، ان نبیوں سے پوچھیں، اے نبی، ان نبیوں سے پوچھیں میں نے انہیں کس بات پہ رسالت عطا کی. اب علی مولا فرما رہے ہیں سارا عرش لرزنے لگا جب سارے انبیاء نے، سارے نبیوں نے، سارے رسول نے ایک زبان ہو کے کہا نبوت کا و ولایت کا علی ابن ابی طالب. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی رسالت کا اقرار کرنے سے اور آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کی نبوت، آپ کی علی ابن طالب کی ولایت کا اقرار کرنے سے ہمیں خدا نے نبی بنایا اور رسول بنایا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. عزادارو، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں خدا نے سب سے اعلیٰ مقام پہ رکھا ہے. کیسی ہستیاں ہیں وہ، کتنی اعلیٰ ہستیاں ہیں. ہم جن کے چاہنے والے ہیں، لیکن کائنات نے ان کی عظمت کو نہیں سمجھا. رسول اللہ کے جانے کے بعد ان کے حال پر وہ مصائب ڈھائے گئے کہ جو سنے وہ تڑپ جائے گا. رسول خدا کے جانے کے بعد علی مولا کا مسجد کوفہ میں سرشگافتہ کیا گیا. حسن مولا کو زہر حلاحل دیا، اور ایسا زہر تھا کہ جگر کے 72 ٹکڑے لگن میں دیکھنے ملے. اور وہ روز عاشور جب حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا، وہ دن
जब आप रोने के लिए आई हैं, जब रोज़े आए हैं, जब रोज़े आशूर नमूदार हुई, एक मरतबा इमाम हुसैन ने अली अकबर को तलब किया। अली अकबर आए, इमाम हुसैन कहते हैं ए अली अकबर अजान दो। क्या कहते हैं? ए अली अकबर अजान दो। हज़रत अली अकबर अजान देने शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर। एक मरतबा जनाब फिज़ा आती हैं, कहती हैं मौला रसूल जनाब ज़ैनब फरमा रही हैं, जनाब ज़ैनब कहती हैं ए हुसैन अकबर से कहो कि थोड़ा बुलंद आवाज़ से अजान दे, ज़रा बुलंद आवाज़ से अजान दे कि ख़ैमे में हुसैन की बहनें सुन रही हैं। अकबर ने जो ही ये सुना कि हुसैन की बहनें सुन रही हैं, एक मरतबा कहते हैं बाबा आप तो इमाम हैं, एक मरतबा मेरी तासीर में ये मेरी आवाज़ में तासीर अता कर दें कि मेरी आवाज़ मदीने तक पहुँच जाए, मेरी आवाज़ मदीने तक पहुँच जाए। ख़ैमे में आपकी बहन सुन रही है, मदीने में मेरी बहन सुन रही है। एक मरतबा आवाज़ में तासीर दी गई कि उनकी अजान मदीने तक सुनाई दी गई। बाद अजान इमाम हुसैन ने कुर्बानियाँ पेश करना शुरू की। कभी बार खुद इमाम हुसैन मक्तल में जाते हैं, कभी हबीब का लाशा लाते हैं, कभी ओन मोहम्मद का लाशा लाते हैं, कभी कासिम का लाशा लाते हैं, कभी अब्बास का लाशा लाते हैं। जब इमाम हुसैन अकेले रह गए, घोड़े पर सवार हुए, मक्तल की तरफ चले, जाके कहते हैं तुम्हें पता नहीं है कि मैं रसूल का दिया गया टुकड़ा हूँ, औलाद अली और फातिमा हूँ, मेरी कत्ल से बाज आ जाओ। शकी कहते हैं हम जानते हैं कि तुम रसूल खुदा के नवासे हो, लेकिन हम तुम्हें कत्ल करेंगे क्योंकि तुमने यजीद की बैत नहीं कही। ये सुनना था। इमाम हुसैन ने तलवार नियाम से निकाली, ऐसा और ऐसी तलवारबाजी की कि सारे लश्कर में हर खौफ में आ गया, सारा लश्कर खौफ में आ गया। और सब अब इमाम हुसैन के नशेब की तरफ, इमाम हुसैन फुरात की तरफ देखते हैं और कहते हैं ए अब्बास आओ उसकी जंग देखो जिसने तुम्हारे बाजू को कलम होते हुए देखा। आओ अब्बास आओ अली अकबर उसकी जंग देखो जिसने तुम्हारे कलेजे से बर्ची की अनी निकाली। आओ कासिम उसकी जंग देखो जिसने तुम्हारे लाशे के टुकड़े टुकड़े अपने आबा में उठाए। आओ सब हुसैन की जंग को देखो कि इनके भूखे पाते ने प्यासे ने ऐसी जंग की कि यजीदी लश्कर खौफ में आ गया। एक मरतबा कहते हैं इमाम हुसैन कहते हैं ए सुलझना, आवाज़ कुदरत आई, पहले आवाज़ कुदरत आई कि ए हुसैन वादा वफा करो। इमाम हुसैन का तलवार में नियाम में रखना था। एक मरतबा हुसैन कहते हैं ए सुलझना तुम्हें नशीब तक ले चल ताकि ज़ैनब मुझे कत्ल होता हुआ ना देख सके। मगर ज़ैनब ने किले ज़ैनबिया पे खड़े होकर अपने भाई को ज़िबा हुआ देखा। एक मरतबा जब इमाम हुसैन नशेब में पहुँच गए, कहीं से तीर की बारिश हो रही है, कहीं से तलवारें, कहीं से नेज़े, कहीं से गुलजार रहा है। एक मरतबा मेरे वक्त के इमाम कहते हैं दारत नाहिया में फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस पर जब जीन से ज़मीन पे गिरा तो न जीन पे था न ज़मीन पे था। एक मरतबा इमाम हुसैन जब जीन से ज़मीन पे आए तो तीरों पे मुअल्लक थे। एक मरतबा इमाम हुसैन कहते हैं, इमाम हुसैन आखिरी सजदा करना चाहते हैं, यजीद बढ़ रहा है। इमाम हुसैन आखिरी सजदा करना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे, ज़मीन तक पहुंच नहीं पा रहे। एक मरतबा इमाम ने थोड़ी सी मिट्टी जमा की। एक मरतबा जब सजदा किया तो सीने के तीर पीछे की तरफ चले गए। इमाम हुसैन के जिस्म में 1900 जख्म थे। एक मरतबा यहाँ पे जनाब फातिमा बयान करती हैं कि जंगल से आई फातिमा जहरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको घेर लिया वाह मुसीबता, अब कौन है कि हक के मुसीबत करे अदा, के 1900 जख्म तने चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। एक मरतबा जब यजीद इमाम हुसैन के करीब पहुंचा, शिमर जब इमाम हुसैन के करीब पहुंचा और जब उनकी पुष्ट पर बैठ गया और जब 12 ज़रमों के बाद हुसैन का गला काटा गया, ज़मीन करबला रज़ने लगी, फुरात का पानी नेज़ा उछलने लगा, आंधियाँ चलने लगी, आसमान से खून की बारिश होने लगी, सूरज को गहन लग गया। मुनादी ने सदा दी अलान को हुसैन बे करबला, अलान तो बेहल हुसैन बे करबला।
ایک مرتبہ جناب سید سجاد کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں اے سید سجاد اٹھو۔ جناب سید سجاد اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا پھوپھی جان، قیامت تو نہیں آ گئی؟ کہتے ہیں نہیں بیٹا، قیامت نہیں آئی ہے، بھائی بیٹا تم یتیم ہو گئے، زینب غریب ہو گئی۔ امام حسین جناب زینب نے کہا، جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں تھوڑا خیمے کا پردہ تو اٹھائیے۔ خیمے کا پردہ اٹھنا تھا، امام کا سر نیزے پہ معلق تھا۔ ایک مرتبہ جو ہی اپنے پاپا کا سر دیکھا، بابا کا سر دیکھا، کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔